I, Aruhi Khanna, the school coordinator, extends my heartfelt pleasure to welcome our respected principal, esteemed parents, Mr. Kashif Khan from City Channel, worthy teachers, and my dear Dalians to our special assembly. This assembly has been special for an occasion that we are here to celebrate. Yesterday night it poured heavenly for 2 hours, but still the zeal, the enthusiasm, and moreover the attendance of our participants have actually made all of us wonder that nobody and nothing can get our New Dalians' energy down. Or I would rather say, they don't take leaves if they know how important it is to be present in school. And with the God's grace, as of now it has stopped and we can actually have our function with the same energy and zeal. So today, all of us have gathered here to celebrate the birth of Lord Krishna, the epitome of love, wisdom, and compassion. His teachings from the Bhagavad Gita continue to inspire and guide us in our daily lives. As we begin our assembly, let's immerse ourselves in the divine presence of Lord Krishna and seek his blessings for a life filled with righteousness, peace, and joy. So to start this auspicious day, we'll begin with a morning prayer. Thank you, God, for food we eat. Thank you, God, for birds that sing. Thank you, God, for everything. God bless Mummy. God bless Daddy. Help me always to make them happy. विनती सुन लो हे भगवान, पढ़ लिख कर बने महान, करें हमेशा ऐसे काम जिनसे चमके जग में नाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। Is a central deity for Hindus, and his life and teachings have left an indelible mark on our culture and spirituality. So to enlighten our mind, I would now like to call upon Dhairya Pratap Singh to share a shlok with us that reflects on one of Sri Krishna's key teachings. और आप सभी को मेरी सुप्रभात। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म को हानि होगी, जब जब अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। प्रत्येक युग से ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। जय श्री कृष्ण। Krishna. Indeed,
This shlok emphasizes the idea that divine is always watching over the world and will step in to correct the course whenever necessary. It teaches us a message of hope and gives reassurance that good will ultimately prevail over evil. So, it's time to have fun, and I'll ask a few questions. So, students, get ready to charge up. You need to answer them. So, let's see how much you know about our Krishna ji. So, the very first question: which musical instrument does Lord Krishna plays? What is the name of the village where Krishna ji spent his childhood? Vrindavan. This side is saying something else. Mathura. Gokul. Krishna ji's childhood is filled with numerous adventurous and fun-filled stories. He spent his youth in Vrindavan, but his childhood was spent in Gokul. Now this, I think, maximum of you must be knowing. Who was Krishna ji's childhood friend? Can be a hard one. So even parents, you can also answer this. Can anyone tell me the name of the epic better served as a charioteer and gave his famous teachings? Mahabharata. Finally, class 4 and 5. Can you say it loud? I think you have guessed it right. Makhan Chor. Yes. His stories remind us all the fun and joy he had with his friends in his childhood. Now allow me to call Miss Ashi on the stage to brief about the next performance coming up on the stage. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. जन्माष्टमी. तो आज क्या है? जन्माष्टमी. जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी का जन्म. यह दिन हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है जो हमें धर्म, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाते हैं. भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है. उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब धरती पर अधर्म और अन्याय का अंधकार छाया हुआ था. कंस जैसे अत्याचारी शासक से प्रजा त्रस्त थी. चारों तरफ भय और अराजकता का माहौल था. ऐसे में भगवान विष्णु जी ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लिया. कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ देवकी को विदा कर रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा. इस आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया. कंस ने तय किया कि वह देवकी के सभी संतानों को मार डालेगा और ऐसा ही उसने किया. जैसे ही देवकी का कोई भी पुत्र जन्म लेता उसका वह तुरंत वध कर देता. इसी तरह कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को वध किया और जब 8वां पुत्र होने का समय आया तब भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया. उनके जन्म के समय कंस के कारागार के सभी पहरेदार सो गए थे और दरवाजे स्वतः ही खुल गए थे. जोरदार बारिश हो रही थी जैसे कि आज भी हुई है. और फिर वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर जोरदार बारिश में यमुना पार कराकर ले जा रहे थे. क्योंकि टोकरी में भगवान श्री कृष्ण जी थे तो यमुना नदी उनको स्पर्श कैसे ना करे, उनके दर्शन वो कैसे ना करे.
इसी तरह यमुना नदी का स्तर अपने आप बढ़ता जा रहा था और बारिश भी अपने आप ही बढ़ती जा रही थी। फिर हमारे नागदेव ने अवतार लिया और उनको अपनी छत्र छाया में लिया। इसी तरह कृष्ण जी ने अपनी माया दिखाई, अपना पैर टोकरी के नीचे डाला और यमुना जी को उनको स्पर्श कराना चाहा। वसुदेव जी कृष्ण जी को गोकुल ले गए और उन्हें यशोदा और नंद के पास छोड़ गए। उन्होंने यशोदा जी की नवजात पुत्री को लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस ने देवकी का यह शिशु देखा तो उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वह बालिका योग माया थी जो कंस के हाथ से छोड़कर आकाश में उड़ गई और कहा, कंस, तुम्हारा वध करने वाले ने जन्म ले लिया है। वैसे तो कृष्ण जी की लीलाएं अपरंपार हैं और आज भी हमारे दिलों को आनंद से भर देती हैं। माँ यशोदा के साथ उनकी माखन चोरी, गोपियों संग उनकी रास लीलाएं और ग्वालों के संग खेलना, उनके साथ गाय चराना और मस्ती करना, यह सब बाल कृष्ण के मनमोहक रूप हैं। उन्होंने अपने बाल मित्रों के साथ न केवल खेल खेल में जीवन का आनंद लिया, बल्कि उन्हें अपने चमत्कारों से अभिभूत भी किया। उनके मित्र के साथ उनकी मित्रता एक आदर्श मित्रता का उदाहरण है, जहाँ सच्चाई, सहारा और विश्वास की बुनियाद पर संबंध टिके हैं। और जहाँ कृष्ण जी का जिक्र होता है, वहाँ मित्रता का नाम अपने आप आता है। सुदामा उनके बचपन के परम मित्र थे। सुदामा और कृष्ण की मित्रता एक मिसाल है जो यह सिखाती है कि मित्रता ना ही जाति और ना ही धर्म और ना ही पैसे की मोहताज है। मित्रता तो सिर्फ दिल से होती है और सच्चे दिल से निभाई जाती है। कभी विप्र सुदामा पत्नी ने है सखा कृष्ण बतलाया था, गुरुकुल में जब वो पढ़ते थे हरि ने उन्हें मीत बताया था। यह भी बोला कि कृष्ण मेरे बचपन से हैं परम मित्र, अब भी प्रतिपाल छाया रहता मानस पर एक रमणीय चित्र। अब तो द्वारका के धीश हैं वो, अब तो द्वारका के धीश हैं वो, राजाओं में बड़ राजा हैं, केशव नरेश हैं, जनपालक न्यायी धर्मी जन राजा हैं। यह बात बताए बीत गए कई वर्ष माह सप्ताह दिवस, पर आज सुदामा पत्नी ने एक प्रश्न किया जिज्ञासावश, एक बात नाथ बतलाओ तो, क्या श्याम अभी भी है तेरे यार? अब भी है स्नेही वैसे, क्या है वैसे ही अमिट प्यार? धीरे स्वर में ब्राह्मण बोला, प्रिय पूछ रही हो क्यों ऐसे, मुझे आशा है विश्वास भी है, मेरे काना है आज भी वैसे। वो नाथ हमारे मीत सखा भगवान भाई भय शक्ति हैं, मेरी पूजा वे आराधना वे मधुसूदन वे जीवन शक्ति हैं। उनके बिन न अस्तित्व मेरा, ना मेरा जीवन बेईमानी है, मेरे कृष्ण त्रिलोकी अधिनायक मोहन की अथक कहानी है। जैसे रखे उनकी इच्छा, जैसे रखे उनकी इच्छा, मैं कृष्ण कृष्ण ही गाता हूँ, दिन रात उन्हीं को भजता हूँ, दीनता में भी सुख पाता हूँ। बस यही सुदामा की ज़ुबानी है, बस यही सुदामा की ज़ुबानी है। आओ देखें फिर वही कहानी जो सिखाए सच्ची मित्रता की निशानी। वो दिव्य ज्ञान के इस स्तर पर थे कि उन्हें किन्हीं भी भौतिक चीज़ों का मोह नहीं था। उनकी पत्नी कभी अपने बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन अपने पति के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। हरे कृष्णा हरे रामा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मैं जानती हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं और उनके सच्चे भक्त भी हैं, और भगवान तो अपने भक्त की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि आप द्वारका जाइए, वह हमारी इस गरीब अवस्था को अवश्य पहचान लेंगे और आपको भौतिक लाभ देने से हिचकिचाएंगे नहीं। नहीं, मुझे उनसे कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। पर उन्हें सब कुछ ज्ञात है, वह जानते हैं कि आप भक्ति की किस सीमा पर हो।
परंतु भगवान कृष्ण सच्ची भक्ति में ही दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने हमें जो भी दिया है मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और वैसे भी क्या हम शांति से नहीं जी रहे हैं? रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। पर पर्याप्त मात्रा में नहीं। आप अपने आप को ही देख लीजिए, कितने दुर्बल लग रहे हैं। कई बार तो आप इस दुर्बलता के कारण ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। बस अब मैं आपको और इस अवस्था में नहीं देख सकती। ठीक है, मैं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन तो कर लूंगा, परंतु मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं, बल्कि मैं ही उनके लिए कुछ ले जाऊंगा। कहते हैं किसी मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, पर सुशीला हमारे पास तो कुछ नहीं है। जाते ही कृष्ण पूछेंगे मेरे लिए क्या लाए हो, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। इन सबके मैं क्या उत्तर दूंगा? अरे अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है। रुकिए, मैं अभी आई। ये देखिए, मुट्ठी भर चावल मिले हैं। अरे वाह, ये अच्छा हुआ। लाओ दे दो मुझे। आप द्वारकाधीश जी से न्याय मांगने आए हो? नहीं नहीं, मुझे मेरे मित्र द्वारकाधीश जी से मिलना है। मित्र? हा 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 हा। अरे सच में वो मेरे मित्र है, मैं सच बोल रहा हूँ। जब ये इतना कह ही रहे तो आप स्वयं जाके क्यों नहीं पूछ लेते? सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लाए हो? राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। ब्राह्मण को मुझसे मिलने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता है? द्वारका नगरी का राजप्रसाद ब्राह्मण और संतों के लिए सदैव ही खुला है। लेकिन किंतु वह ब्राह्मण अजीब सा है, ना ही उसके पैरों में खड़ाऊ है और ना ही उसके सिर पर पगड़ी, और उसकी तो धोती भी फटी हुई है। द्वारपाल, क्या ब्राह्मण होने के लिए इन सब की आवश्यकता है? नहीं नहीं, किंतु वह ब्राह्मण पागल लग रहा है। क्यों, ऐसी क्या बात है? वह कह रहा है कि वो आपका मित्र है। मित्र? क्या नाम बताया उसने? नाम? हाँ, सुदामा। सुदामा? क्या कहा तुमने? सुदामा आया है? रुक्मणी, सुना तुमने? मेरा बाल सखा सुदामा आया है। जाओ, स्वागत की तैयारी करो। द्वारपाल, मुझे मेरे मित्र के पास ले चलो। चलिए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा, कैसे हो मेरे मित्र? बहुत वर्षों बाद मिले हो।
लाओ ये मुझे दो, बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, चलो मेरे साथ, बैठो यहाँ। यहाँ? अरे नहीं नहीं। अरे बैठो यहाँ, बहुत दिनों बाद मिले हो, मुझे सेवा का अवसर नहीं दोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, द्वारकाधीश इस दरिद्र ब्राह्मण की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? ये ब्राह्मण बाहरी रूप से दरिद्र दिख रहा है, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। निश्चित रूप से खूब बड़े पुण्य किए होंगे, तभी द्वारकाधीश उसकी इतनी देखभाल कर रहे हैं। हाँ, स्वयं द्वारकाधीश उन्हें बड़े ही आदर से लेने आए, अपने आसन पर बिठाया, इसका मतलब है उनके कोई खास मित्र हैं। अच्छा सुदामा, ये बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए? तुम्हारी पत्नी ने अवश्य ही मेरे लिए कुछ भेजा होगा। लाओ सुदामा, अब दे भी दो मुझे, और कितनी प्रतीक्षा कराओगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है कृष्ण को देने के लिए, मैं ये कैसे दे सकता हूँ कृष्ण को? क्या हुआ? लाओ, दो मुझे। अरे वाह, इतने बढ़िया चावल लाए हो, और ये तुम मुझसे छुपा रहे थे। आहा, कितने बढ़िया चावल हैं। आहा। हाँ, वो घर जाने के लिए वापस निकल पड़ी। रास्ते में वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के विचारों में डूबे हुए थे। उनकी कृष्ण जी से भेंट हुई, ये सोचकर बहुत ही आनंदित थे। मैं दरिद्रता से पीड़ित हूँ, और यदि मुझे दान मिलता है तो मुझे अहंकार हो जाएगा, और भौतिक ऐश्वर्य से पागल होकर मैं उन्हें भूल जाऊंगा। ऐसे ही सोच में डूबे हुए सुदामा आखिरकार अपने घर पहुंच गए। अरे ये सब कैसे बदल गया? ये किसका महल है? यदि ये वही जगह है जहाँ मैं रहता था, तो ये सब कैसे बदल गया? अरे सुशीला, ये सब बदलाव कैसे हुआ? मैं तो हमेशा से गरीब था। मेरे मित्र भगवान श्री कृपा दृष्टि के बिना कोई भी दूसरा कारण मुझे दिखाई नहीं देता। भगवान भक्त के हृदय को जानते हैं। जब भगवान को भक्त बड़े प्रेम से कुछ अर्पित करता है तो भगवान उसे बहुत ही आनंद से स्वीकार करते हैं। और मैंने तो नहीं बस मुट्ठी भर चावल दिए थे, उनके बदले में उन्होंने मुझे ऐसा ऐश्वर्य दिया जो स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा है। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं हमेशा उनके चरणों की भक्ति करूँ। जय श्री कृष्णा।
सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए काज। तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। नंद खिलाड़ा तेरी भक्ति में नाचे सबका तातैया। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए काज। सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए काज। What a mesmerizing performance. The skit beautifully depicted the timeless friendship between Krishna and Sudama, reminding us of the true essence of love and devotion. And the dance on the Krishna Bhajan was simply enchanting, capturing the divine spirit of Janmashtami. We get ready to burst the matki and celebrate the joyous spirit of Janmashtami. So are you all ready? The excitement. चाहे तुम निकले तुम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। Lord Krishna made sure that when I was born and I was being carried from the jail to Vrindavan, Gokul, sorry, it was raining very heavily. So it did last night. I came to know for nearly 2 hours, very heavy. We can see the ground wet. But he was very kind enough that we could have the event, the program today. All because of the blessings of Lord Krishna. He understood, he knew our children have prepared very well. You've called parents. So how can it not happen? So he has been very kind to us and we should thank him for that. Children, can you come on stage? Everybody, all those who participated, you mesmerized me. And I can vouch, you mesmerized everybody present here. When functions happen, parents feel that, mera bacha skit mein na participate kare, it should be in dance. Dance is something which is mesmerizing for everybody. For today, for me, I think the skit was equally good. When I was small, their age, maybe or slightly older, not their age, I used to watch Mahabharata on Doordarshan. I am from that era. When every Sunday morning,
I can't even confirm from anybody, what time it used to come, but morning it used to come and we were all hooked to the TV. So these children took me back to that era. And the way they all acted, be it Lord Krishna, be it Sudama, his wife, it was mind-blowing. You all can do such a lovely job. Every time you surpass my expectations. Every time. When I see your rehearsal, I say to Arohi ma'am, no, I'm not calling parents. But the last day, no, the children are busy, they're not listening to, they're busy trying to locate their parents. I hope everybody, you have located your parents? You know where they are sitting? Everybody? Okay, so can we give a last big hand to these lovely participants? Thank you parents for being so supportive always, for following our notifications, whatever we ask from you, you always cooperate. And when you come, you boost our morale, you encourage us, not only your child, but all the participants. So thank you for coming. Children, I know it's long, you've been standing, you want to go back to your classes. Good job, Arohi ma'am. Ashi ma'am, well compared. You told us all about Janmashtami, so that is why I did not mention the story. Our videographer Saloni ma'am, photographer Disha ma'am, and Mr. Kashif Khan from City Channel. Early morning he was there, we told him, gave him time of 7:45 like we gave you, and 7:44 he was there. Early morning, you live so far, and from there you have come, so thank you for coming. Thank you each one of you. Parents, there's a small prasad for you, please do take it before you leave for your homes. Thank you all very much.